Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 15th of March 2021, Monday. Inspiration of the day is there are no limits to what you can accomplish except the limits you place on your own thinking. News from March 13 and March 15 will be covered under this discussion, and these are the articles that we are going to discuss into today's analysis. So let's start with article number 1 given on page number 1 of today's newspaper. Asset monetization target for states may be set at rupees 3 trillion. For the first 4 decades after independence, India pursued a path of development. And in that development path, the public sector undertakings or public sector were expected to be the engine of growth. However, with the pace of time, public sector and different public sector undertakings overgrew itself and its shortcomings started manifesting in low capacity utilization and low efficiency. And because of number of shortcomings such as overmanning, low work ethics, overcapitalization, inability to innovate, take quick decisions, late decision making, large interface in decision making process, number of channels or communication hurdles, bare minimum capacity utilization, all these shortcomings of public sector undertakings were started getting into limelight. And therefore, the first time in 1991, the path of disinvestment or the decision of disinvestment has been taken by government of India, and since then number of times number of governments are taking investment decision, and we all know that in the first drive of disinvestment or the privatization, that is 1991 to 1992, approximately 30 to 31 public sector undertakings were disinvested for approximately 3000 crore. And if we go back to the history of disinvestment procedure, so in August 1996, Disinvestment Commission that was chaired by Mr. GVK Ramakrishnan was set up to advise, supervise, monitor, and basically to publicize gradual disinvestment of Indian public sector undertakings. However, later in financial year 2004, this particular disinvestment commission ceased to exist. Why? Because of the duplicacy of the work with the Department of Disinvestment that was set up as a separate department in 1999. And later, this Department of Disinvestment renamed as Ministry of Disinvestment into financial year 2001. And in 2004, this particular Department of Disinvestment was brought under the Ministry of Finance. And recently, we all know that this Department of Disinvestment has been renamed as Department of Investment and Public Asset Management, जिसको हम शॉर्ट में दीपम बोलते थे। 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता था उसको रीनेम करके दीपम कर दिया गया, and that has become the nodal department for strategic stake sale in the all public sector undertakings, or we can say Indian public sector undertaking. And apart from it, National Investment Fund, जिसको हम NIF भी शॉर्ट में बोलते हैं, इसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फाइनेंशियल 2005 में. And into this NIF, the proceed from disinvestment of central public sector enterprises were to be channelized. और अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने डिसइन्वेस्टमेंट की, प्राइवेटाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है. और आपको पता होगा कोविड-19 के ड्यूरेशन में जिस समय फाइनेंशियल ईयर 2020 था उस समय भी गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था, रिवेन्यू टारगेट सेट किया था कि फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट विल जनरेट दैट अमाउंट ऑफ रिवेन्यू और ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स. और उसी के तहत सेंट्रल असेट्स को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के असेट्स को भी और स्टेट्स गवर्नमेंट के असेट्स को भी मोनेटाइज किया जा रहा है. तो आज की न्यूज़ देख लेते हैं. National Asset Monetization Pipeline may set a target of 3 trillion for the state to monetize their assets over the next 4 to 5
ईयर्स। तो स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए जो या स्टेट्स हैं जिनके पास ऐसे असेट्स हैं जो कि यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, अबंडेंट पड़े हुए हैं, जिनका यूटिलाइजेशन नहीं है, या जो किसी भी तरह की इनकम जनरेट नहीं कर रहे, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि वो उन असेट्स को सेल करके रिवेन्यू जनरेट करे। एंड फॉर दैट द टारगेट ऑफ 3 ट्रिलियन हैज़ बीन सेट अप फॉर नेक्स्ट 5 years। तो अब बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंटर गवर्नमेंट एंड नीति आयोग ये आपस में डेलिब्रेशंस कर रहे हैं कि जो मोनेटाइजेशन करना है असेट्स का, जस्ट लाइक लैंड हो गया, कोई मशीनरी, कोई यूनिट पड़ी हुई है, सिक यूनिट, अगर उनका मोनेटाइजेशन करना है, उनको बेचना है, उन असेट्स को मोनेटाइज करना है, देन व्हाट मॉडल दे विल अडॉप्ट फॉर इट। And as per the top government official, they are toll, operate, transfer, operate, maintain, transfer, infra investment trust and real estate investment trust. All these are the few models that states government can actually go with. और इस जो asset monetization की जो पाइपलाइन तैयार करी गई, जो टारगेट रखा गया, इससे क्या होगा, इससे जो गवर्नमेंट के अनयूटिलाइज असेट्स हैं, ऐसे एरिया जहाँ पर पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, इनकम जनरेट होगी स्टेट गवर्नमेंट की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। हालांकि किस मॉडल के तहत असेट्स का मोनेटाइजेशन किया जाना है यह भी फाइनलाइज नहीं किया गया, बट देयर आर नंबर ऑफ मॉडल्स बाय विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स the infra or different types of assets can be monetized। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है स्टूडेंट, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो हो सकता है किसी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग दिस नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क। तो इसको आप याद रखेंगे, क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी जो कंपनी है, दैट इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द रोड मैप और द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, and it is expected to lay out the target for the states and center। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए जो कलेक्टिव टारगेट रखा जाएगा फॉर अपकमिंग 5 years, तो 3 ट्रिलियन का रखा जाएगा। बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स मोनेटाइजेशन स्टेट्स गवर्नमेंट शुड जनरेट अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन रुपीज़। और अगर सेंटर गवर्नमेंट की बात करें तो सेंटर गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ट्रिलियन का टारगेट दिया गया फॉर मोनेटाइजिंग देयर असेट्स ओवर नेक्स्ट 3 years। That is actually starting from the current year itself। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि दैट पर्टिकुलर टारगेट इज वेरी मच एम्बिशियस, बट एटलीस्ट governments are very keen to monetize their assets in order to generate the revenue at the time of pandemic, where the state government as well as the center government are facing the revenue crunch or empty coffer situation। So this is the मिनिस्ट्री वाइज और सेक्टर वाइज असेट मोनेटाइजेशन टारगेट। जैसा कि हम देखते हैं, रेलवे, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, सिविल एविएशन, यूथ अफेयर, पेट्रोलियम, पोर्ट्स, सबके लिए अलग अलग टारगेट रखा गया। एंड द लार्जेस्ट टारगेट हैज़ बीन सेट फॉर रेलवेज। और रेलवे को प्राइवेटाइज करने की, रेलवे के असेट्स को मोनेटाइज करने की गवर्नमेंट बहुत टाइम से ट्राई कर रही है। हालांकि बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स। लिबर जो ट्रेड यूनियंस हैं, दे एक्चुअली अपोज ऑल सच थिंग्स और सच रिफॉर्म्स, but still CRISIL under its infrastructure or asset monetization pipeline have set the target for different ministries। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 given on page number 6। Government tells SEBI to disclose more in annual reports। Annual report is one of the very important document for companies as well as for investor, and it is said one of the very important pillar of corporate governance। जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए उसके रियल ओनर्स कौन होते हैं? उसके रियल ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं, दे आर द रियल ओनर्स। और डेफिनेटली जो ओनर्स होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो दे कैन नॉट ऑपरेट द कंपनी और दे कैन नॉट सी द डे टू डे फंक्शन। तो वो क्या करते हैं? दे अपॉइंट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन टर्म्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। और टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली मिल करके दे टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स एंड टेक ऑल द डिसीजन इन बेनिफिट्स ऑफ द शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर का बेनिफिट क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड हाउ टू मैक्सिमम यूटिलाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इसके लिए शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट, CEO और MDs वगैरह को। तो बेसिकली हम ये कहते हैं जो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर्स होते हैं, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट। तो होता क्या है, बेसिकली किसी भी कंपनी में
जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किस बिहाफ पे लिए जा रहे हैं, कंपनी में कितना फाइनेंस अवेलेबल है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम करना है, कंपनी का मार्केटिंग कैसे काम कर रहा है, कंपनी का CSR क्या है, व्हाट इज द बुक, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द लॉस, ऑल सच इंफॉर्मेशन नीड टू बी डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर्स, टू द स्टेक होल्डर्स और द इन्वेस्टर्स ऑन टाइमली बेसिस। अब यहाँ पर मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। क्या कोई डिफरेंस होता है इन दोनों में या दोनों एक ही हैं, इंटरचेंजेबली इनको हम यूज़ कर सकते हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखकर के आप मुझे ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस इफ़ एनी बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर्स। तो अब न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ बेसिकली एनुअल रिपोर्ट होती है जो वो कंपनी की एक्टिविटीज़ को स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करती है टाइमली बेसिस पे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एनुअल रिपोर्ट, इट्स अ एनुअल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, finances and important activities of the companies, and it is basically information or the disclosure documents। और इसको पढ़ के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पता चलता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। इन्वेस्टर्स, जो करंट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि क्या उनका पैसा, उनका वेल्थ मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहा है। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी ये देखते हैं वेदर इट इज़ वर्थ फॉर इन्वेस्टिंग इनटू दैट कंपनी और नॉट। तो एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट के साथ एक सेलिंग डॉक्यूमेंट जो कंपनी को एक्चुअली सेल करता है, उसको देख करके इन्वेस्टर्स ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो एनुअल रिपोर्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट को गवर्न करने के लिए कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स और पब्लिक और स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट में काम कर रहे हैं या वो अपने खुद के सेल्फ बेनिफिट के डिसीजन ले रहे हैं। तो अब क्या हुआ उसका, डेफिनेटली अगर एनुअल रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो तो उसका फॉर्मेट, कौन से इन्फॉर्मेशन उसमें आएगी, कौन कौन से कंपनीज उसको मैंडेटरीली पब्लिश करेंगी, कब तक पब्लिश कर देना है, ये सब कुछ फिक्स होता है। That all are regulated by different enforcement authority, and SEBI is one of them. So recently, Finance Ministry has suggested several changes in SEBI's annual report formats, seeking true and false accounts of activities, policies and programs for a whole year. और जो भी नया फॉर्मेट या नया स्ट्रक्चर फाइनेंस मिनिस्ट्री सजेस्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग देयर विल बी द इंक्रीज in terms of information disclosure, in-depth analysis of each segment ranging for corporate governance to regulatory action taken by market regulator। तो कोई भी, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, सेबी भी अपनी खुद की एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, आरबीआई भी अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी को सजेस्ट किया है कि उसकी जो खुद की एनुअल रिपोर्ट्स है उसके फॉर्मेट्स में, उसके कंटेंट में एक सिग्निफिकेंट चेंज किया जाए, जिससे कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं दे कैन ईजिली सी द एनालिसिस ऑफ ईच सेगमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू रेगुलेटरी एक्शन टेकन बाय मार्केट रेगुलेटर, क्या क्या एक्शन लिए हैं और कैसे कैसे एक्शन लिए हैं। अंडर दिस न्यू फॉर्मेट, सेबीज एनुअल रिपोर्ट विल नाउ इंक्लूड द रेगुलेटर सोर्स ऑफ फंड, मेजर एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर, it will have the greater disclosure in terms of corporate governance or corporate restructuring. And apart from it, detail of merger and acquisition and other regulatory actions taken by सेबी, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो रहा है, डिफरेंट ओपन ऑफर्स जो दिए गए हैं, इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑफर डॉक्यूमेंट्स, लिस्टेड कंपनीज की डिटेल्स, डिफॉल्टर कंपनीज की डिटेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन अब एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फिलहाल के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया, एंड दिस विल बी सबमिटेड टू द डिफरेंट अथॉरिटीज, एंड वंस इट इज अप्रूव्ड द सेबी हैज टू डिस्क्लोज as per the new format, and definitely it may have the impact on the company's annual report disclosure. So this is the new change of the new format that actually Ministry of Finance is expecting from SEBI. तो 13 चैप्टर्स होंगे, फर्स्ट अलग अलग चैप्टर के अलग अलग कंटेंट हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या होना चाहिए, सेकेंड चैप्टर में क्या होना चाहिए, थर्ड चैप्टर में क्या होना चाहिए, एंड व्हाट आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आपको डिस्क्लोज करनी है सेबी को
एंड दिस इज़ द ओल्ड फॉर्मेट. ओल्ड फॉर्मेट में क्या होता था, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होती थी हर सेगमेंट की, डिस्क्लोजर फॉर्म्स को रिलेटेड नहीं होता था, अकाउंट्स का और एक्सपेंसेस का डिस्क्लोजर नहीं होता था, कितने सिक फॉर्म्स हैं, कितने लिस्टेड कंपनी, सबका बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं होता था. दिस वॉज द ओल्ड फॉर्मेट. बट नाउ the new format has been actually proposed by finance ministry and it is expected कि ये बहुत जल्दी पास हो जाएगा. And this will lead to the improved information communication for stakeholders and public. तो public के हाथ में भी, investors के भी हाथ में भी एक अच्छी और एक accurate और authentic information रहेगी in the form of SEBI's annual report, and definitely that will improve the business environment and market participation into the economy. तो जो इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट था वो इम्प्रूव होगा कि इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन, एंड वी ऑल नो इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज द न्यू ऑयल इनटू द कंटेम्प्रेरी एरा. आज के टाइम में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा असेट्स है, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ सैटरडेज न्यूज़पेपर. फाइनेंस मिनिस्ट्री asked SEBI to revoke the new rule on AT1 bonds. So, Finance Ministry has written to SEBI requesting it to withdraw a rule that fixes the tenure or the maturity of all perpetual bond at 100 years. And as per the Ministry of Finance, the valuation is disruptive in nature and could lead to a higher borrowing cost for companies at a time when economic recovery is on nascent phase. तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में सेबी भी कहते हैं, उसको रिक्वेस्ट किया है कि कुछ जो रूल्स हैं 81 बॉन्ड्स में जो एक्चुअली फिक्स करते हैं टेन्योर और मैच्योरिटी फॉर ऑल परपेचुअल बॉन्ड एट 100 ईयर्स, ऐसे रूल्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए. एंड इफ़ यू रिमेंबर रिसेंटली, अगर आप न्यूज़ से थोड़ा सा, मार्केट से थोड़ा सा एक्विटेंट हैं, तो रिसेंटली वेडनेसडे को सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें जितने भी म्यूचुअल फंड एमएफ इन्वेस्टमेंट्स हैं in debt instruments with special features such as additional tier bonds, उनको, या मैं कह सकता हूँ उन पर थोड़ा सा कब लगा दिया था या थोड़ा सा कैप लगा दिया था, थ्रेशोल्ड लिमिट लगाते थे. एज पर द सेबी, नो म्यूचुअल फंड वुड own more than 10% of AT bonds issued by a single issuer. Now, सबसे पहले what is AT bond? AT bonds क्या होते हैं बेसिकली? इस न्यूज़ को समझने के लिए AT बॉन्ड को समझना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर बहुत सिंपल फॉर्मेट में मैं आपको समझाऊं तो 81 बॉन्ड्स, जिनको हम नॉर्मली बोलते हैं एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, तो इनका जो फुल फॉर्म होता है एडिशनल टीयर 1, जिसको शॉर्ट में 80 बॉन्ड्स बोलते हैं. दीज आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड विच हैव द परपेचुअल टेन्योर. परपेचुअल मीन्स हमेशा के लिए, परपेचुअल कंटिन्यूअस. तो सिंपल फॉर्म में इनकी कोई मेच्योरिटी डेट्स नहीं होती. दीज 81 बॉन्ड्स डू नॉट हैव एनी मेच्योरिटी डेट्स, दे जस्ट हैव द कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन मीन्स buyback option. Whenever company whosoever has issued this 81 bond, जब उसको ज़रूरत होगी वो इनको कॉल बैक या बाई बैक करेगी और वो इन्वेस्टर से वापस खरीद लेगी by paying the maturity amount of money. So they have the call options which can be used by banks to buy these bond back from the investors. So 81 bonds or additional tier 1 bonds are the type of unsecured perpetual bonds that banks issue to shore up their core capital base to meet generally Basel 3 norms. And basically दो routes होते हैं जिनके through these bonds can be acquired, और ये bonds acquire किए जा सकते हैं. Initial private placement offer of additional tier 1 bonds by banks seeking to raise the money, and the secondary market buys of already traded 81 bonds. तो कोई इन्वेस्टर्स अगर 81 bonds में इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले या तो इनिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स के थ्रू एक्वायर कर सकता है, ईदर फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट. और डेफिनेटली अगर ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, इनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट का रिस्क होता है. अगर कंपनीज या बैंक्स चाहें तो इसको मना भी कर सकती हैं. पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा तो मना भी कर सकती है दैट आवर फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ नॉट दैट मच गुड, सो वी विल नॉट टेक दीज बॉन्ड्स बैक. तो कंपनी की विश पर होता है कि वो कब और कैसे इस पर्टिकुलर 80 बॉन्ड्स को बाई बैक करती है, करती नहीं भी है. एक्सट्रीम सिचुएशंस में कंपनीज, बैंक्स जो होते हैं वो मना भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर 81 बॉन्ड्स को बाई बैक करने से. तो डेफिनेटली अ हायर अमाउंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व, एंड इन
market equation. If there is a higher amount of risk, there is a higher amount of return. So generally 80 bonds are like any other bonds issued by banks and companies, but they pay a slightly higher rate of interest compared to the other bonds. Definitely अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क ले रहा है 81 बॉन्ड्स को खरीदने का, तो तभी लेगा जब उसको उस पर हायर इंटरेस्ट, क्योंकि इससे रिस्कियर बॉन्ड, रिस्कियर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो कोई क्यों उतने रिस्क पर इन्वेस्ट करेगा जब उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. तो डेफिनेटली दीज बॉन्ड्स हैव अ हायर इंटरेस्ट रेट इन कंपैरिजन टू द अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन द मार्केट. And these bonds are also listed and traded on exchanges. So if an additional tier 1 bond holders need a money, he can sell it into the secondary market. तो secondary market में भी इनकी trading होती है. But mind it, the investor cannot return these bond. There is no put option available to its holder. तो जो खरीदेगा अभी secondary market में, वो भी उसको भी पता है कि these bonds are actually riskier bonds, but definitely they will buy it for higher rate of return. And recently, Security and Exchange Board of India, to slap the restriction on mutual fund investment in additional tier bonds, has raised a storm in mutual fund and banking sector, जो कि वेडनेसडे को सर्कुलर इशू किया है, जिसमें सेबी ने क्लियरली कह दिया कि म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनमें 10% से ज़्यादा 80 बॉन्ड सिंगल इशूअर का नहीं हो सकता. मतलब अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी 81 बॉन्ड को इशू करना चाहती, तो ऐसा नहीं कह सकती कि वो 20% 30% एक ही इन्वेस्टर को सेल कर दे. नो, 10% से ज़्यादा कोई एक सिंगल इशूअर नहीं होल्ड कर सकता additional tier bonds into mutual fund company, and because of that there is a storm into the mutual fund and banking sector. तो बेसिकली ओनरशिप पर लिमिट लगा दी गई है म्यूचुअल फंड कंपनीज में 81 बॉन्ड्स को लेकर के. एंड नंबर ऑफ experts are saying that the SEBI has probably made this decision after RBI allow a write-off of 8,000 crore on 81 bonds issued by Yes Bank after it was rescued by State Bank of India. And now Finance Ministry has also written to SEBI और इसमें रिक्वेस्ट करिए withdraw a rule that fixes the tenure or maturity of all perpetual bond at 100 years. और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी से कहा है कि जो भी आपने रिस्ट्रिक्शन फिलहाल के लिए लगाए हैं उसको आप थोड़ा सा इन्वोक करिए. Why finance ministry is asking SEBI to actually withdraw this rule? Because number of mutual fund companies will be affected by this particular decision. Why? Because at this time of economic recovery, जब भी economic recovery अभी start ही हुई है कुछ सेक्टर में, और उस समय अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज को जो कि बहुत ज़्यादा कैश क्रंच थी कोविड-19 के सिचुएशन में, अगर उनको cost of borrowing उनकी बढ़ेगी, तो it will be very difficult for all mutual fund companies or the NBFCs to recover with a good pace. होता क्या था basically, mutual funds have treated the date of call option on 80 bonds as maturity date. Now if these bonds are treated as 100 years old bond as per the SEBI restriction, it raises the risk in these bonds and they become ultra long term. जो 100 साल का जो परपेचुअल बॉन्ड्स 80 बॉन्ड में जो लिमिट है, अगर उसको सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग 100 साल का माना जाए, तो डेफिनेटली दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिकम्स अ अल्ट्रा लॉन्ग टर्म. 100 साल कौन जिंदा रहता है, कौन सा इन्वेस्टर जिंदा रहता है आज के टाइम में. सो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बिकम ultra long term investment, and definitely it will raises the risk into these bonds, and this could also lead to the high volatility in the price of these bonds as the risk increase, the yield on these bond rises, and bond yield and bond prices move in opposite direction, we all know, and therefore higher yield will drive down the price of bond, which in turn will lead to a decrease into the net asset value of mutual fund schemes holding these bonds. And because of this reason, the Finance Ministry has requested the Security and Exchange Board of India to actually remove or fixes this tenure or maturity of all perpetual bond at 100 years or less than 100 years. So Finance Ministry has asked the SEBI to withdrawal of the valuation norms for 81 bonds.
as it might lead to mutual funds making losses and exiting from these bonds, affecting the capital raising plans of public sector banks. So अगर mutual funds companies एडिशनल टीयर वन के बॉन्ड में जो पार्टिसिपेशन से अगर पीछे हटती है तो डेफिनेटली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं बेसिकली जिनके कैपिटलाइजेशन के प्लान किए जा रहे हैं, लोन रिकास्टिंग के प्लान करी जा रही है, स्ट्रेस जो असेट्स हैं उनको मैनेज करने का प्लान किया जा रहा है, वो प्लान अफेक्ट होगा क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और एनबीएफसीज आर द बिग स्टेक होल्डर्स इनटू दिस कैपिटलाइजेशन process. The government doesn't want a disruption in the fund mobilization exercise of the bank at the time when two public sector banks are on privatization block. तो कई सारे सेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज अफेक्ट तो होंगी, अदर एनबीएफसीज भी अफेक्ट होंगी, जो बैंक का रिकैपिटलाइजेशन का प्रोसेस है, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, वो भी अफेक्ट होगा. दैट इज वाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री आस्क्ड सेबी टू एक्चुअली विड्रॉ दिस रूल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परपेचुअल बॉन्ड एट 100 years. So these are the few key points that you can go through with. No need to muck up all these points. Actually, it is a little bit technical news. I tried it to make is as simpler as I can. और अगर बहुत सिंपल 2-3 लाइन में मैं बताऊं तो बेसिकली जो 100 ईयर्स के परपेचुअल एडिशनल ईयर बॉन्ड्स हैं उनके 100 ईयर्स की लिमिट को कम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेबी से कहा है. क्यों कहा है सेबी से? क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर रूल विड्रॉ हो जाता है या फिक्स कर दिया जाता है तो जो बैंक्स हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जो एनबीएफसीज हैं, उनको फंड रेज करने में आसानी होगी, स्पेशली उस टाइम जब 2 बैंक ऑलरेडी प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं. एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इनटू दीज एडिशनल टीयर 1 बॉन्डिंग और बॉन्ड offerings. And because of that, finance minister ने clearly सेबी से बोला है कि you just fix this rule or withdraw this rule of 100 years, जिससे कि जो रिस्क इन्वॉल्व होता है इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में वो रिस्क रिड्यूस हो और पार्टिसिपेशन बढ़े, जिससे बैंक का प्राइवेटाइजेशन कैपिटल रेजिंग की जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाए. क्योंकि Tier 1 bond is one of the very important part of Basel 3 norms. कुछ अमाउंट का Tier 1 bond मेंटेन करना पड़ता है as per the Basel 3 and we all know Basel 3 क्या है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं. What is Basel 3? आज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे what is Basel 3, what is Basel 2, what is Basel 1. अब देख लेते हैं some other news clips. AAI to offload residual stake in Bangalore Hyderabad airport. So डेफिनेटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी फिलहाल के लिए अपने सारे स्टेक को लिक्विफाई कर रही है और क्या हम कह सकते हैं प्राइवेटाइज कर रही है, सेल कर रही है, इज नाउ गोइंग टू ऑफलोड इट्स रेजिडुअल स्टेक. तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेल अप्रॉक्सीमेटली 13% ऑफ स्टेक इट होल्ड इनटू Bangalore International Airport or GMR Hyderabad International Airport in order to raise the funds. The authority will soon appoint the transaction advisor for it and conduct the valuation. कि क्या valuation होगा 13% stake का and what will be the process of this offloading of residual stake of Airport Authority of India. तो हैदराबाद और बैंगलोर के 13% stake को ऑफलोड करने जा रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. ग्लोबल इन्वेस्टर फ्लॉक टू प्राइवेट डेट स्पेस in India. Global investors such like Canada Pension Fund, Investment Board, Ontario Teachers Pension Plan, Baring Private Equity Asia, and number of other private global investors जिनका हमने Reliance के केस में नाम सुना था और other startups के केस में, they all are actually coming to Indian private debt. And why they are actually want to flock to India or flock to private debt space of Indian economy? Because India is actually recovering from COVID-19 or the pandemic and they are actually expecting the huge demand in terms of credit. क्यों credit? क्योंकि कंपनी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, पैसे मनी की डिमांड बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी. दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी में, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में क्रेडिट की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू रिकवरी प्रोसेस. और बैंक्स जो हैं, चाहे एनबीएफसीज की बात कर ली जाए, चाहे इंडियन बैंक्स की बात कर ली जाए, दोनों की ही जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. दे विल नॉट बी एबल टू सैचुरेट और सैशिएट द finance thrust of Indian economy, and that is why all the global investors are anticipating the huge growth potential into India's private debt space, and that is why they all are actually coming to India. Private debt means
debt given to the privately held company or buying those loans in the secondary market. तो इसी definitely उनको growth potential दिख रहे हैं, they are actually coming to India. अब देख लेते हैं next clip. No blanket ban on crypto says finance minister. तो recently crypto currency को लेकर के बहुत ज़्यादा speculation है. अभी जो basically bitcoin है उसके रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है whether India wants to make it legal tender or not. हालांकि इंडिया का भी बिल आने वाला है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर के, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा भी क्लैरिटी नहीं है. बट जो आरबीआई के हमारे जो गवर्नर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, उससे कंटिन्यूसली यही स्टे करा है कि ब्लैंकेट बैन नहीं होगा इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के. इट विल बी रेगुलेटेड एंड द विंडो विल बी मेड अवेलेबल to all those investors, all the individual who want to experience the cryptocurrency or the blockchain. और RBI के गवर्नर ने recently कहा था, now our the finance minister Nirmala Sitharaman has made it clear that there will be no complete ban on cryptocurrency. और इस तरह के अनाउंसमेंट के बाद से, और डेफिनेटली हमने रिसेंटली अपने को याद होगा डिस्कस भी किया था, कई सारे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े डिसीजन अनाउंस किए थे. तो उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का रेट बहुत, जो वैल्यूएशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. और इंडिया जैसी इकोनॉमी जहाँ पर ऑलरेडी इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ही मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर इस तरह के अनाउंसमेंट से इट मे लीड टू हायर वैल्यूएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी. एंड नाउ दीज डेज क्रिप्टो करेंसी इज एक्चुअली इमर्जिंग एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इंडिया एफएक्स रिजर्व बिकम द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सो इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व surpasses the Russia, and it has acquired the 4th largest position into the South Asian nation or the world. रशिया को सरपास करते हुए 4th पोजीशन में आ गया इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एनफ टू कवर द 18 months ऑफ इम्पोर्ट एज पर द आरबीआई, कि 18 महीने का इंपोर्ट इंडिया कवर कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी जो इंडिया के पास है करेंटली. और आपको अगर याद भी होगा कि प्री कोविड के पहले भी इंडिया के पास एक ह्यूज अमाउंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जिसको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था. तो आप मुझे बताएंगे प्री कोविड-19 में इंडिया की सिचुएशन क्या थी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और क्या कोविड-19 के ड्यूरेशन में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा. फिलहाल के लिए आज की न्यूज़ ये है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दैट बिकम्स द लार्जेस्ट एंड come on the 4th position in the world. So South Asian nations central bank continue to hold the dollars to cushion the economy against any sudden outflow. So India's foreign currency holding fell by $4.3 billion to $580.3 billion as of March 5. Reserve Bank of India ने फ्राइडे को ये डेटा डिस्क्लोज किया है, edging out Russia 580.1 billion pile, and China has the largest reserve followed by Japan and Switzerland. तो इंडिया से ऊपर केवल ये 3 कंट्रीज हैं, चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड, as per the International Monetary Fund table. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social applications or the platforms. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.